Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, I will describe you placentation in plants. As you can see just at the top of my head, the key points are flashing. Placentation in plants. Actually, why placentation in plants? Why not only placentation? This is because placentation may be found in animals. In case of reproductive system and in case of human reproduction, you are well familiar with the word placenta formation, that is known as placentation. Just after the implantation, the next events was the placentation. That was over in class 10th and it is available in class 12 but not in class 11. This is all about matter of class 11. So in this video lecture I will everything explain as according to placentation in plants for class 11 syllabus. So without delay timing, let I introduce you what is placenta in plants. Actually, when you cut a thin TS of any kinds of ovary, then you will find the locule, a very specific chamber inside ovary and having an ovule. Ovule linked with locule with a thin placenta, with a tubular placenta or a connective, that is a placenta. That placenta help to supply the food material as like the placenta in human being and other animals to the ovule, and in the ovule the embryo are developed. So what is placenta and what is placentation? The arrangement and distribution of ovule along with placenta inside ovary is known as placentation. I think your concept is clear. How do ovule arranged inside the ovary with the placenta? That is actually total terms regarding the placentation. That is found in angiospermic plants and characteristics of angiospermic plants. As you can see, just uh, one side of my view, one side of my video, there are so many figures, that is about 6 figures are there, and these figures give you an idea what are the meaning of placentation. I hope with the help of this figure you can imagine what are the exact uh, features of placenta. In each case you can see there is an ovule, there is an locule, and also the ovary, that is either TS or LS. In case of P you can see, in case of P there are a pod having single locule but having many ovules, that are placenta on one side, that is in case of marginal. So one by one I will describe how many types of placenta. Without delay timing, let back on board and explain according to uh, video lecture, according to the diagram and according to structure about the placenta. Now back to the board. Now the placentation, definition of placentation: arrangement and distribution of ovule along with placenta inside the ovary called placentation. यानी कि प्लेसेंटा के थ्रू जो ओव्यूल लिंक्ड होता है वो उसका लिंकिंग किस साइड से होता है, कैसे होता है, नंबर ऑफ ओव्यूल कितने होते हैं, नंबर ऑफ लॉक्यूल कितने होते हैं, ये आपको जानना। पहले मैं आपको बता दूं कि ओव्यूल और लॉक्यूल में डिफरेंट क्या होता है और ओवरी के किस पोजीशन में होते हैं, ठीक है, उसको मैं एक बार डिस्क्राइब कर दूं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सपोज दैट ये आपका क्या है, ओवरी है, ठीक है, ओवरी नहीं बल्कि ये क्या है, गाइनोसियम है। ओवरी ये है, ये स्टिग्मा है और ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ठीक है, और ये क्या है, ओवरी है। सबको पता है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी। ओवरी का जब आप अंदर जाएंगे, ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो आपको बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसमें आपको मिलेगा कि अंदर उसके ओव्यूल है और वो प्लेसेंटा से लिंक है, ठीक है, और ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, ओवरी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ओव्यूल है, ये जो पार्ट दिख रहा है ये उसका प्लेसेंटा है, ये ओव्यूल है, ये प्लेसेंटा है, और ये जो पार्ट दिख रहा है ये उसको बोलते हैं चैम्बर और लॉक्यूल, ठीक। तो यहाँ पे आपको जानना है कि हाउ डू द ओवरी लिंक्ड विथ मेन, दैट इज हाउ डू द ओव्यूल linked with the main part of ovary through the placenta. The overall process of placentation is arrangement of ovule along with placenta inside the ovary. Arrangement of ovule, that is how ovule linked with placenta and ovary, that is actually known as placentation. One by one I will describe you how many types of placentation are found in angiospermic plants and angiospermic ovary. Now let us talk about the types of placentation.
First type of placentation, as you can see, the axial placentation, basal placentation, marginal placentation, free central placentation, parietal placentation एंड सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन. एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे और आपको समझाएंगे. ठीक है. नाउ बैक टू द एक्साइल प्लेसेंटेशन. योर हेडिंग इज एक्साइल प्लेसेंटेशन. अब एक एक करके सारी चीज़ों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट में क्लियर करते जा रहा हूँ और समझाते जा रहा हूँ. ठीक है. एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या होता है कि ओवरी मल्टी लॉक्यूलर होता है, ढेर सारे लॉक्यूल होते हैं. ठीक है. ये ओवरी है और इसके अंदर जो है बहुत सारे चैम्बर होते हैं. यहाँ पे मैं 4 चैम्बर ही बना रहा हूँ, टेट्रालॉक्यूलर ही, लेकिन आप इसको जानिए कि ये पेंटालॉक्यूलर भी हो सकता है. ठीक. ओवरी में ढेर सारे चैम्बर हो सकते हैं. तो जैसे 1 लॉक्यूल, 2 लॉक्यूल, 3 लॉक्यूल, 4 लॉक्यूल. कंडीशन क्या है कि ओवरी आर हैविंग मैनी लॉक्यूल. ठीक है. ये आपको दिमाग में बैठा लेना है, ओवरी में बहुत सारे लॉक्यूल होते हैं. ठीक. अब इसका दूसरा कंडीशन क्या है कि इसमें ओव्यूल बहुत सारे होते हैं. ठीक है. दैट इज मल्टी लॉक्यूलर, मल्टी ओव्यूलर, एंड देयर हैज मैनी सेप्टम. तो सेप्टम सबको पता है कि बिना सेप्टम के लॉक्यूल बन नहीं सकते, चैम्बर बन नहीं सकते. सेप्टम मतलब दीवार होता है. ठीक. अब सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन का, वो ये होता है कि जितने भी ओव्यूल होते हैं वो सेंट्रली अरेंज्ड होते हैं. यानी कि ये सारे के सारे ओव्यूल इसके सेंटर में अरेंज होंगे. ठीक है. आप डायग्राम बना लीजिए. दैट इज द डायग्राम ऑफ एक्साइल प्लेसेंटेशन. दैट इज कॉमन इन हिबिस्कस, सिट्रस एंड सोलेनेसी फैमिली. आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा. हिबिस्कस, सिट्रस एंड सोलेनेसी फैमिली में ये कॉमन होता है. कौन कौन? हिबिस्कस, सिट्रस एंड सोलेनेसी. ठीक है. आई होप आपका कॉन्सेप्ट एक्साइल प्लेसेंटेशन के लिए क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहला खास बात ये होता है कि ओवरी मल्टी लॉक्यूलर होता है, बहुत सारे चैम्बर होते हैं. ठीक है. और मल्टी ओव्यूलर होता है, बहुत सारे ओवरी ओव्यूल भी होते हैं, और सारे के सारे ओव्यूल क्या होते हैं? एक सेंटर में होते हैं. तो ये एक्साइल प्लेसेंटेशन की खास बात होती है. अब आते हैं बेसल प्लेसेंटेशन पे. ठीक है. बेसल प्लेसेंटेशन की खास बात क्या होती है? लिसन केयरफुली. बेसल जो होते हैं सिंगल ओव्यूल और सिंगल लॉक्यूल वाले होते हैं. दैट इज यूनिलॉक्यूलर होते हैं. सपोज दैट ये मैं बना दे रहा हूँ सिंगल ओव्यूल और सिंगल लॉक्यूल. ठीक है. ये सिंगल ओव्यूल सिंगल लॉक्यूल बन गया, और इसके एक सेंटर पे एक ओव्यूल एक प्लेसेंटा के साथ लिंक होगा. बाकी आपको पता है, बाकी ये सब सारा पोर्शन जो है ओवरी और स्टाइल स्टिग्मा के लिए चला जाता है. तो इसकी खास बात क्या होती है? द सिंगल लॉक्यूल विथ सिंगल ओव्यूल यूनिलॉक्यूलर होता है. ठीक है. तो अगर आप फुल डायग्राम बना रहे हैं तो इस तरह से बनाना पड़ेगा. जैसे एक नॉर्मल सा डायग्राम जो होता है ओव्यूल का और लॉक्यूल का, इस तरह से आप बना लीजिएगा. ठीक है. ये जो डायग्राम है इस तरह से आप बना लीजिएगा. तो ये आपका बन गया डायग्राम किसका? ये बन गया आपका डायग्राम जो है एक कंप्लीट जो है बेसल प्लेसेंटेशन वाले का. ठीक है. ये क्या हो गया? उसका ओव्यूल, और ये उसका हो गया लॉक्यूल, ये हो गया स्टाइल, और ये हो गया आपका स्टिग्मा. तो इस चीज़ के बारे में आपको जानना है कि बेसल प्लेसेंटेशन होता किस में है. ये कंपोजिटिव फैमिली में होता है, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड एक्सेट्रा. ठीक है. इसका की पॉइंट्स नोट कर लीजिए. सिंगल लॉक्यूल विथ सिंगल ओव्यूल. सिंगल लॉक्यूल अगर यूज करेंगे तो यूनिलॉक्यूलर. ठीक है. यूनिलॉक्यूलर, यूनी ओव्यूलर. बट the overall locule with placenta, the ovule with placenta linked with locule थ्रू द बेसल पार्ट ऑफ द बॉडी. ये बेस साइड में इसमें लिंकिंग होगा. ठीक है. ओव्यूल बेस में यानी कि पीछे बॉटम साइड में लिंक होगा, तो ये क्या हो जाएगा? बेसल प्लेसेंटेशन. अब आते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन को डिस्कस कर दे रहे हैं. ठीक है. मार्जिनल प्लेसेंटेशन. मार्जिन मीन्स क्या होता है? किनारे. जैसे ये कोई कंपार्टमेंट है तो एक किनारे ये, एक किनारे ये, मार्जिन होता है. यहाँ से अगर लिंकिंग होगा ओव्यूल का तो बेसल हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ इसको हम जानना है कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता किस में है और होता क्या है. मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या होता है कि ये यूनिलॉक्यूलर होते हैं, मल्टी ओव्यूलर होते हैं. ठीक है. तो लेकिन थोड़ा सा इसको थोड़ा इस तरह से बनाना पड़ेगा, एक साइड में इसमें मार्जिन हम बना सके. ये यूनिलॉक्यूलर है, पूरा नीचे से ऊपर तक देखो, ये नीचे से ऊपर तक क्या है? एक ही तरह का क्या है? लॉक्यूल दिख रहा है. ठीक. तो ये हम बना दे रहे हैं, फिर से दोबारा से बना दे रहे हैं. ये आपका हो गया यूनिलॉक्यूलर. ठीक है. मल्टी ओव्यूलर, बट ऑल ओव्यूल्स आर linked with one side, that are actually one side are free and all ovules are linked with one side. यानी कि सभी के सभी ओव्यूल जो है
एक साइड से लिंक होंगे, ठीक है, एक साइड पे लिंक होंगे। डायग्राम आप बना लीजिए, सारे के सारे ओव्यूल जो है सिर्फ जो है वेंट्रल साइड में लिंक होंगे। इसको एक साइड को वेंट्रल माना जाता है और दूसरे साइड को डॉर्सल मान लिया जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल किस में, एब्सोल्युटली डायग्राम देखते ही पता लेंगे इसको, पाइसम सेटाइवम जिसको पी बोलते हैं, ठीक है। मार्जिनल प्रेजेंटेशन में एक मार्जिन में सारे के सारे ओव्यूल जो है लगे होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पी और पाइसम सेटाइवम। अब आते हैं नेक्स्ट, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कई बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में जो ओवरी होता है वो यूनिलॉक्यूलर होता है, क्लियर है। अब इसमें भी ये कंडीशन है कि ये यूनिलॉक्यूलर मल्टी ओव्यूलर होते हैं, ठीक है, यूनिलॉक्यूलर और मल्टी ओव्यूलर होते हैं, यानी बहुत सारा ओव्यूल होता है। लेकिन बिना आप ओव्यूल का पोजीशन जाने ये नहीं बता पाएंगे कि वो कहाँ होता है और कैसे बनेगा डायग्राम। तो फ्री सेंट्रल के बारे में पहले समझ लें कि ये मल्टी ओव्यूलर होता है और यूनिलॉक्यूलर होता है। चैम्बर एक ही है लेकिन ओव्यूल ढेर सारे हैं। बट ऑल ओव्यूल्स आर सेंट्रली अरेंज्ड, यानी कि सारे के सारे ओव्यूल क्या होंगे, सेंटर में होंगे। देखो सेंटर में है और अगर सेप्टम है, सेंटर में है और सेप्टम है तो ये एक्साइल प्लेसेंटेशन हो जाएगा, और सेप्टम नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। तो क्लियर है ट्रिक क्या है, ये फ्री होते हैं, सेप्टम यानी कंपार्टमेंट नहीं होता है, और ये क्या है आपका ओव्यूल है, ठीक है। ये एक पूरा का पूरा देखेंगे तो एक ही तरह का क्या है, लॉक्यूल है, एक ही तरह का चैम्बर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जितने भी हैं वो सारे के सारे ओव्यूल्स हैं, और ये क्या उसके लॉक्यूल्स हैं, ये पूरा क्या है, ओवरी है, ठीक। आई होप इसका डायग्राम आपको समझ में आया होगा। ये फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन धतूरा में होता है, लिख लीजिए DATURA, धतूरा स्ट्रामोनियम, इसको धतूरा बोलते हैं। इसका क्लियर ये होता है कि यूनिलॉक्यूलर मल्टी ओव्यूलर विदाउट सेप्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, पेराइटल प्लेसेंटेशन, ठीक। नेक्स्ट डिस्कस कर दे रहे हैं पेराइटल प्लेसेंटेशन पे। ये पेराइटल प्लेसेंटेशन पे इसको चेक कर दें। पेराइटल मीन्स होता है चारों तरफ, ठीक है। तो इसमें भी कंडीशन क्या होता है कि ये यूनिलॉक्यूलर होते हैं और मल्टी ओव्यूलर होते हैं। इसका भी डायग्राम बना दें, यूनिलॉक्यूलर और मल्टी ओव्यूलर, ठीक है। और इसमें भी बिना हम पोजीशन जाने ओव्यूल का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, यानी ओव्यूल यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, कहाँ होंगे। तो सबसे पहले देख लो कि पेराइटल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, यूनिलॉक्यूलर यानी कि पूरा का पूरा एक ही लॉक्यूल होगा, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात होती है कि व्हेन ओव्यूल्स आर हेल्ड एट वन बॉर्डर ऑफ ओवरी रेडियली, यानी कि ये रेडियल पोजीशन पे, यहाँ पे सारे के सारे जितने भी ओव्यूल हैं वो रेडियल पोजीशन पे यहाँ पे लिंक होंगे, दैट इज एक्चुअली पेराइटल प्लेसेंटेशन। तो नोट कर लीजिए, मल्टी ओव्यूलर, यूनिलॉक्यूलर एंड ऑल ओव्यूल्स आर रेडियली अरेंज्ड। और इसमें भी क्लियर है कि सेप्टम इस तरह का नहीं होगा, ठीक है, विदाउट सेप्टम। तो पेराइटल प्लेसेंटेशन क्या हो गया, मल्टी ओव्यूलर यूनिलॉक्यूलर एंड ऑल ओव्यूल्स आर लिंक्ड एट द रेडियल साइड ऑफ ओवरी, रेडियल वॉल ऑफ ओवरी, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है, फैमिली ब्रेसिकेसी, ठीक है। और इसमें ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस यानी सरसों में, अर्जिमोन मैक्सिकाना यानी भड़भाड़ में, और पैपेवर सोमनीफेरम, इसको कई बार बताया जा चुका है। पैपेवर सोमनीफेरम पैपेवरेसी फैमिली में आता है, अर्जिमोन भी उसी फैमिली का है, और उससे ओपीएम यानी कि पोस्ता निकल आता है। और लास्ट बच गया सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन में क्या होता है कि स्केटर्ड ओव्यूल होते हैं, इसको भी एक बार बता दे रहे हैं। सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन, इसमें क्या होता है, मल्टी ओव्यूलर, ठीक है। ये ओवरी बन गया और इसमें ढेर सारे क्या बन जाएंगे, ओव्यूल बन जाएंगे, ढेर सारे क्या बन जाएंगे, लॉक्यूल, मल्टी लॉक्यूलर, ठीक है। ये एक लॉक्यूल, दूसरा, तीसरा, ऐसे बहुत सारे लॉक्यूल बन जाएंगे। तो यहाँ काउंट नहीं करना है, बस बना लेना है। तो इसका कंडीशन क्या होता है, मल्टी लॉक्यूलर मल्टी ओव्यूलर, ढेर सारे ओव्यूल होंगे। लेकिन इसकी खास बात होती है, मैंने कहा कि बिना आप डायग्राम, बिना आप पोजीशन ओव्यूल का जाने ये नहीं बना सकते हैं, बता सकते हैं कि एक्चुअल में ओव्यूल का जो है एग्जैक्ट पोजीशन और डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। तो अभी आप जान लीजिए कि ये मल्टी लॉक्यूलर होते हैं जो डायग्राम में बन चुका है, और मल्टी ओव्यूलर होते हैं जिसको आपको पोजीशन जानना है। और पोजीशन क्या है कि ऑल ओव्यूल्स आर स्केटर्ड एट ऑल द इनर लॉक्यूल, यानी कि सारे के सारे जो ओव्यूल हैं वो सब कहाँ होंगे, सब के सब स्केटर्ड होंगे। कैसे स्केटर्ड होंगे, ये सारे के सारे ओव्यूल हैं जो इसी में स्केटर्ड होंगे, ठीक है, ये सब स्केटर्ड होंगे एट द इनर साइड ऑफ ईच लॉक्यूल, ठीक है। ये सब जो है ओव्यूल जो है इसी में क्या होंगे, स्केटर्ड होंगे, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे स्कैटरिंग दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना है कि ये क्या उसका जितने भी दिख रहे हैं ये हैं आपके ओव्यूल, ठीक है, और ये क्या है उसके लॉक्यूल, ठीक है। तो ये ढेर सारे लॉक्यूल, ढेर सारे ओव्यूल, बट दे ऑल आर स्केटर्ड। सो एक्साइल टू सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन इज ओवर। आई होप योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग एक्साइल, बेसल, मार्जिनल, फ्री सेंट्रल, पेराइटल इज क्लियर। पेराइटल एंड सुपरफिशियल इज क्लियर, ठीक है। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन मल्टी ओव्यूलर, मल्टी लॉक्यूलर, बट ऑल ओव्यूल्स आर एट द सेंटर। बेसल प्लेसेंटेशन यूनिलॉक्यूलर, uniovular, and the ovules are at the base. Marginal placentation unilocular, multiovular, but all are at one side. Free central placentation the unilocular, multiovular, but all are at the center. Parietal placentation unilocular, multiovular, and all ovules are radially arranged. Superficial placentation the multiovular, multilocular, and all ovules are scattered form. The example of superficial presentation is water lily and nymphaea. वाटर लिली आप देखे होंगे, उसको जो है जनरली नवरात्र वगैरह में इसको फ्रूट्स को इसको तोड़ा जाता है, चढ़ाया जाता है। तो उसको तोड़ेंगे, काटेंगे तो सरसों के बीज के जैसा स्केटर्ड आपको क्या मिलेगा, छोटे छोटे सीड्स मिलेंगे, वही एक्चुअल में अर्लियर ओव्यूल होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा एक्साइल टू सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन। थैंक यू।